हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएपी कैम टाइम पे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, आपके साथ के जितने भी हैं क्लास वाले बुलाइए उन्हें, खुद तो आ ही जाइए, है ना? जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चों, कल हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया था, है ना? ये हमने पढ़ लिया था। आज का जो एम रहेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड शैल वी स्टार्ट? ओके, द पॉइंट हियर इज these are the summary of photoelectric experiment results. I'll show you. मैं आपको दिखाऊंगा that how this experiments look like, how this experiment look like, and how do we perform the experiment. Yes, यहाँ पे कुछ बातें बोली गई। तो photoelectric effect है क्या? What is photoelectric? In photoelectric effect, you strike a light on a metal. You strike a light on a metal, and the electrons are ejected. So there are some observations which are observed during this experiment, which are mentioned here. यस, जब आप लाइट डालते हो मेटल पे, किस पे लाइट डालते हो? मेटल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, हाँ ना? बोलिए, क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कुछ अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। वो प्रॉपर्टीज में क्या है कि जो आपका करंट निकलता है वहां से, जिसे आप फोटो करंट भी बोलते हो, यू कॉल इट फोटो करंट ऑल्सो, यू कॉल इट अ फोटो करंट ऑल्सो। This is linearly proportional to the intensity. This is linearly proportional to the intensity of light. Okay. Current appears with no delay. There is no delay. Like as soon as the light is struck, the electron ejects. जैसे जैसे लाइट पड़ती है ऐसे झट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता। लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला, रुका नहीं। अब ये रुकना क्यों चाहिए था? तो वो मैं आपको समझाऊं। I'll make you understand. Don't worry about it. Yes, electrons only emitted frequency of light exceeds the threshold. Basically, that's what it is trying to say, that electrons are emitted only when the frequency of light is greater than a certain threshold value. Threshold value मतलब कम से कम इतनी वैल्यू तो लगेगी, उसके बाद ही काम होगा। That this is the least value after which the electron will be ejected. So that value is known as threshold. तो यहाँ पे threshold frequency का एक कॉन्सेप्ट। Yes, ये आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी कुछ भी। कल थोड़ा सा मैं सेव नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने अपलोड नहीं करा है। इसलिए प्लीज आप वीडियो से देख लीजिएगा। आज से मैं आपकी अपलोड कर दूंगा ये, प्लीज बुरा मत मानिएगा, है ना? प्लीज, दैट मतलब कल का रह गया, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो वो आप वीडियो से बना लीजिएगा प्लीज। ठीक है। The maximum kinetic energy that electrons comes off with increase linearly with frequency. Frequency के साथ कैसे बढ़ता है? Linearly बढ़ता है। And last में threshold frequency depends on the type of. These are the 5 observations of photoelectric experiments. Yes, yes. चलो, देखना चाहोगे photoelectric experiment? Do you want to see the photoelectric experiment? बोलो हाँ। Do you want to see the photoelectric experiment? Please tell me yes or no. Please tell me yes or no. Okay, one is enough. See this. Okay, yeah. See this. ये सबको दिख रहा है? So this is our light. This is our light source. Let's say, wait, 0% and okay, yes. So this is what we have here. ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा सेटअप है, ये हमारा सेटअप है, ये हमारा सेटअप है, ये हमारा सेटअप है। उसके लिए क्या नाम है उसका? ये हमारा सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या है, ये देखो, ये वोल्टेज में, यहाँ पे वोल्टेज मेजर, यहाँ पे करंट मेजर हो रहा है, तो एमीटर लगा होगा, हाँ है ना? So there it is intensity of light, the light which you are striking, and this is the wavelength of the light. This is the wavelength of the light. Am I clear or not? Am I clear or not? Am I clear or not? Yes. Shall I proceed? Shall I proceed? Now, what happens is let's start some light. Yes. Now it is a red light. Now it is a red light. अभी red light इसके ऊपर पड़ रही है, बोलो हाँ है ना? तो थोड़ी कम इंटेंसिटी की पड़ रही है। I'm trying to increase. Yes. So that's what we have. You'll have to bear with us. So now what I'm doing is, let's say it is sodium. Yes. So now I am putting my, अब मैं ये लाइट बढ़ा रहा हूँ. I am increasing the intensity of the light, but electrons are not ejected. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे. यस, मैंने कुछ इंटेंसिटी डाली हुई है लाइट की, पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे. धीरे धीरे जैसे मैं इसकी इंटेंसिटी में कलर बदल रहा हूँ, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूँ, नाउ आई एम चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ये देखो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया. यस यस, तो ये देखो ये निकलना बंद हो गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. अभी ये देखो, मैं अभी जैसे ही पर्टिकुलर वैल्यू पे आता हूँ, हाँ ये देखो 500 के आसपास आ रहा हूँ. जैसे ही मैं 500 के आसपास आ रहा हूँ, whenever I come close to 500, the electron starts ejecting. Yes, yes. And now when I change the intensity, when the intensity is 0, since no photon is striking, यहाँ से कोई भी टकरा नहीं रहा है, no electron is being ejected, and
When I increase the intensity now, the electron starts ejecting. And as I increase the intensity, the number of electrons which are being ejected increase. Yes or no? Clear है कि नहीं clear है? जैसे जैसे मैं intensity बढ़ा रहा हूं. Yes, now I am increasing the frequency. जब मैं frequency increase कर रहा हूं तो इसकी देखो speed बढ़ रही है. Electrons number same है, पर स्पीड बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की. अब देखो मैं जैसे जैसे और बढ़ाता जा रहा हूं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी. देखो, हाँ है ना? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बताइए. अरे बोलो हाँ है ना? देखो मैं फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ाता हूँ, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, देखो स्पीड बढ़ गई. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज. एज आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. यस और नो? यस और नो? प्लीज टेल मी. एवरीबडी यस और नो? एवरीबडी यस और नो? आई विल इंक्रीज मोर. नाउ स्पीड विल इंक्रीज. नाउ देयर विल बी अ मोर इंक्रीज इन. यस. अब जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ तो नंबर कम होते जाएंगे. इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ तो नंबर कम होते जाएंगे. और धीरे 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 जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा, नंबर बढ़ते जाएंगे और 100% पे मैक्सिमम हो जाए. यस और नो? चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो बच्चा, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये आपका ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखाई. बोलो हाँ है ना? हाँ. अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, देखो ना, मैं यहाँ पे 0% इंटेंसिटी है. नाउ माई इंटेंसिटी इज 0%. इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं निकल रहा. मैं धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाई, मैंने इंटेंसिटी लगाई, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. ठीक, एक एक करके जा रहा है. मैंने 6% इंटेंसिटी करी है, मैंने और इंटेंसिटी बढ़ा दी. देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने लगे, मैं और इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन. जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, ठीक, मेरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं. और जैसे जैसे मेरे इलेक्ट्रॉन यहां टकराएंगे, देखो करंट की वैल्यू देखो, सी द करंट वैल्यू, सी द करंट वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो, सी दिस वैल्यू एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां टकराएंगे उतना करंट पैदा होता है. द मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक हियर, more is the current. Yes, more is the current generated. So see this value and you will understand. See this value and you will understand. See this. So this is also increasing. As I increase the intensity, this is also increasing. Yes or no? Yes? Clear? Yes? This current is also increasing. So let's get back again. And now we will draw a graph. Now we will draw a graph. अब हम क्या करेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे. अब हम क्या करेंगे? अब हम ग्राफ बनाएंगे. So I'll draw current versus light intensity. I'll draw the graph of current versus light intensity. Current versus लाइट इंटेंसिटी. वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी. हाँ, बट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट थ्रेशोल्ड वैल्यू. उससे पहले नहीं निकलेगा, वो मैं बनाऊंगा अभी. नाउ वी आर गोइंग टू मेक ग्राफ्स. अब हम ग्राफ्स बनाने जा रहे हैं. क्या बनाने जा रहे हैं? ग्राफ. सी दिस. नो, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी. करेक्ट विनीता. सी द ग्राफ. सी द ग्राफ. ओके, ग्राफ देखिए. अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं. सी दिस ग्राफ. यहां पे देखना ग्राफ प्लॉट हो रहा है. Y axis is current, X axis is intensity. Y axis is current, X axis is intensity. देखो, Y axis is current, X axis is intensity. देखना, Y axis is current, X axis is intensity. मैं intensity बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना. The current value is 0. See the graph. As I increase the intensity, current also increases. Yes, yes. Did you see the graph? Did you see the graph? Yes. Please tell me. Please tell. Did you see the graph? You get a straight line. इस तरफ करंट है, इस तरफ इंटेंस. हाँ ना? बोलिए. यस, यस. I'll make you see again. प्लीज देखिए, प्लीज सी दिस. If I decrease the intensity, see this. The current decreases. Yes, that goes to 0. As I increase the intensity, the current. Yes, yes, everyone. Yes or no? Please tell. Is it visible to everyone? Is it visible to everyone? Please tell me. बात समझ में आ रही? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? सर, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. नो, नो राकेश, मैं बताता हूं अभी. मैं बताता हूं फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इंटेंसिटी क्या होती है, मैं बताता हूं. ठीक, पहले अभी थोड़ा ये कर ले, है ना? पहले थोड़ा सा ये कर लेते हैं. यस, यस. सी दिस. चलो बता ही देता हूं. देखो, दिस इज अ वेव. ओके, दिस इज अ वेव. यस, दिस वैल्यू इज कॉल्ड ए. ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. और ये जो पॉइंट ए है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. क्या बोलते हैं इसे? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. यस. सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ ए, जो भी वैल्यू आएगी ए की, एम्पलीट्यूड की, दैट इज इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम. नंबर 1. एंड कितनी बार ये पास कर रही है? एक ऐसे पास कर रही है, एक ऐसे. राइट. लेट्स से यहां से यहां जाने में इट टेक्स 1 सेकेंड. यहाँ पे टाइम है, और यहाँ 0 और यहाँ 1 सेकेंड. टाइम पर सेकेंड. यस. और ये भी 0 और ये 1 सेकेंड. यस, क्लियर है? ये कितनी बार वेव बनी है, कितनी वेव्स बनी है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी.
तो यहाँ पे ज्यादा बनी है, तो दिस इज नोन एज लो फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? हाँ है ना, बोलो। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना, बोलिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इंटेंसिटी इसका एम्पलीट्यूड का स्केयर है एंड दिस इज फ्री। यस, क्लियर है? बोलो हाँ है ना, राइट? राकेश, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्यों नहीं क्वांटम आती थी? राकेश, अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्यों नहीं क्वांटम आती थी? आपको पार्टिकल और वेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। आपको अभी पार्टिकल और वेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। अब बच्चा जब वो ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप क्वांटम पढ़ोगे कैसे? तो आप लोग क्वांटम वही, मुझे मैथ आता है, मुझे वो क्या कहते हैं उसे, मैं कम्यूटेशन पॉपुलर वो कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, पर मुझसे क्वांटम के क्वेश्चन नहीं होते। वो रीजन ही वही है, क्योंकि आपने क्वांटम को कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ा ही नहीं, आपने फॉर्मूले की तरह पढ़ा और फॉर्मूले का रट्टा मार लिया। अब मेरे सामने दुनिया का कोई फॉर्मूला ला दो, आपने फॉर्मूले का रट्टा मारा हो, बस आपने फॉर्मूले का रट्टा मारा हो, मैं आपको दिखा दूंगा कि आपकी मतलब आप कैसे गलत करोगे। द पॉइंट इज फॉर्मूलाज, math is just a representation, math is a language, math is a language of science. It is just a representation of your thoughts. Whatever you think, you represent in the form of equations. That's what it is, nothing more than that. So the point is, you need to understand the concept behind that equation. If you understand the concept, then you are good to go. Otherwise you will be stuck somewhere, and if you have just crammed the formula and you do not know the concept, definitely you are going to be stuck. And nowadays the level of exam is very good, मजा ही आ जाता है पेपर देख के, and that level, जिसने रट्टा मारा है वो मना ही मरना। सी दिस। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूँ आपसे, ये आपका ऐसा हो। क्लैरिटी है? बोलो हाँ है ना, अरे बोलो हाँ है ना। तो ये ग्राफ आप बनाओगे, तो यू विल मेक दिस ग्राफ करंट वर्सेस इंटेंसिटी, यू विल मेक दिस ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस इंटेंसिटी। यस, यू विल मेक दिस ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस इंटेंसिटी। यस, बना लीजिए, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ये ग्राफ बना लीजिए, प्लीज मेक इट, प्लीज मेक इट। अब अज्यूमिंग, आप क्या अज्यूम करके चल रहे हो? न्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ये वाला ग्राफ कब वैलिड है? न्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। यस यस, लेट्स से आपकी जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से बहुत कम हो गई, यू हैव कम है, अब थ्रेशोल्ड से बहुत कम हो गई, नाउ योर वैल्यू, नाउ योर फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस देन, frequency is very less than, frequency is less than new threshold. Yes, now whatever you do in the change of intensity, it does not, you are just changing the, just see the green dot, you are just changing the intensity, it has nothing to do with the current, the current is always zero. Whatever आप जो मर्जी इंटेंसिटी कर लो, आप जो मर्जी इंटेंसिटी कर लो, करंट हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो जो आपका ग्राफ बना है, ग्राफ देखिए, जो आपका ग्राफ बना है ध्यान से देखिए, इंटेंसिटी वर्सेस, सॉरी यहाँ पे करंट वर्सेस इंटेंसिटी, करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ये तब है जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, आया ना, तब आपको ये ग्राफ मिले। यस, इफ न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, इफ न्यू इज लेस देन न्यू थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी जो है कम है, सो दिस इज करंट एंड दिस इज इंटेंसिटी। आप जितना मर्जी चेंज कर लीजिए, आप जितना मर्जी चेंज कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, करंट आपको जीरो ही मिले। क्लियर है कि नहीं क्लियर? करंट आपको जीरो ही मिले। यस और नो? क्लियर है? ये ग्राफ बन गया? यस और नो? हाय ना बोलिए। नो नो, अब ये हो गया बच्चा। नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू, व्हाट एम आई गोना डू, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी वर्सेस लाइट फ्रीक्वेंसी। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ, आपको मैं एक्सिस बता देता हूं, आपको मैं एक्सिस बता दे, देखिएगा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी of electron, I'll say maximum kinetic energy of electron, and this is frequency of light। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? frequency of light बना रहा हूं। चलेगा कि नहीं चलेगा? प्लीज सी, मैं आपको बता रहा हूं, हमें बिल्कुल साइंस को साइंस की तरह पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी साइंस इन टर्म्स ऑफ साइंस ओनली, एंड यू लव इट, आई गारंटी दैट। आपको रटने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको रटने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, you won't require a single thing for cramming, because this is, and I assure you, you will love quantum mechanics। और मैं मैथ बहुत कम इस्तेमाल कर, मेरा मैथ जो रहता है ना बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि आई नो द कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट जरूर रहे। हाँ है ना, बोलिए यस यस, चलेगा? अभी अच्छा तो लग रहा है भाई, भाई अच्छा तो लग रहा है। डू यू गाइज, आर यू गाइज लाइकिंग इट और नॉट? प्लीज टेल मी, आर यू गाइज लाइकिंग इट? वी वर्क अ लॉट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीजों को, ताकि आपके तक ऐसे लेके जाए ताकि आपको समझ में आए। यस, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, what I'm gonna do, मैं क्या करने जा रहा हूं, now I'm going to change the frequency, so my axes are these, maximum kinetic energy of electron and frequency of light, these are my x and y axis। ठीक है, अब आपको ये समझना है, अब आपको ये समझना है, मैं यहाँ पे वो ग्राफ, क्योंकि ये छोटा है तो दिख नहीं रहा होगा, ये छोटा है तो दिख नहीं रहा होगा, राइट?
So that's what I'm gonna do. See this. Now I'll start from here. I'll start from 850 nanometer, which is in the IR region. I'm gonna start from 850 nanometer, which is from IR region. मैं 850 नैनोमीटर से स्टार्ट कर रहा हूं, जो कहां पे है IR रीजन में है. क्या कर रहा हूं मैं? Now I am increasing the frequency. Check this. How you will get to know that you are increasing the frequency? Check this blue dot. इस ब्लू डॉट को पता करिए, इस ब्लू डॉट को चेक करिए. आपको ये वैल्यू बढ़ती हुई मिलेगी. इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी क्लियर है कि नहीं क्लियर. एंड यू विल गेट टू नो. सी दिस फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग. सी दिस ब्लू डॉट, राइट. इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया. नाउ क्लैरिटी है? यस और नो? क्लैरिटी है? यस, क्लैरिटी. तो ये जो हाईएस्ट एनर्जी का है और धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. दोबारा से देखेंगे. I'll come again, and here I go. Check the speed of ejected electron. Check the speed of ejected electron. Yes. पहले कितनी धीरे है speed, and as I increase, the speed of ejected electron increases. The speed of ejected electron increases. Yes. Now I've increased. शुरुआत से फिर से कर देता हूँ. दोबारा से देख लेना. दोबारा से देख लो. As I increase the frequency, पहले तो कुछ नहीं निकल रहा है ना ना ना. टिल 500 कुछ नहीं निकलेगा. 520 के आसपास कुछ निकला. नाउ अब आप धीरे धीरे जैसे बढ़ाते जाओगे, you'll see the speed is increasing. बढ़ रहा है ना स्पीड? yes. So you are getting this type of yes, and it looks like this. So you are getting this type of graph. Initially the electron was not being ejected. After particular point, this will be known as threshold free. कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्री. जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो. हाँ ना बोलिए. यस और नो? ये स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन. डोंट वरी अबाउट इट. इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. यस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ ना बोलिए. क्लियर? यस. नाउ अब इसके बाद गेट बैक हियर. नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज. यस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज. प्लीज सी. आप इसको यहां रखिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकलता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल. यस और नो? नाउ यू चेंज दिस वोल्टेज. ये वाली वोल्टेज आप इधर अप्लाई करो. ये जो वोल्टेज है अप्लाइड हियर. हाँ ना बोलिए. अरे चलेगा? हाँ, अराउंड. नो, नॉट, इट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज वेवलेंथ. वी विल टॉक अबाउट इट. अभी उसके बारे में छोड़ दो. नंबर्स, डोंट टॉक अबाउट नंबर्स. विल टॉक अबाउट नंबर्स, डोंट वरी. पहले अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो. फ्रीक्वेंसी के बाद वो पर्टिकुलर उतना हो रहा है. यस. सो आई एम अप्लाइंग दिस वोल्टेज हियर. यस और नो? आई एम अप्लाइंग दिस वोल्टेज हियर. तो अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूं. ग्राफ इज फोर्थ करंट वर्सेस वोल्टेज. हाँ है ना? देखिए, मैं जब ये वोल्टेज चेंज करूंगा, ध्यान से देखिएगा. अगर मैं वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ लेके जाता हूं, पॉजिटिव, देखिए इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. विच चार्ज इज जनरेटिंग पॉजिटिव. इससे इसकी स्पीड बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है स्पीड? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट होगा. Yes or no? Electron will be attracted by the positive charge. And electrons will come faster. As I increase more the current, but the current is same. It's just that it will move faster. And if I decrease this voltage, you see, you will get this type of curve. तो ये कर्व ऐसा मिल रहा है. Yes, and this is known as stopping potential. कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं इसे? स्टॉपिंग पोटेंशियल. इस पॉइंट पे आके यू आर गेटिंग योर करंट इज जीरो. तो कहने का मतलब आपने इतना नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दिया है कि इलेक्ट्रॉन, अब रिपल्शन इतनी ज्यादा हो गई कि इलेक्ट्रॉन वहीं रुक गया. तो जो वर्क आपने किया है इतना पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, दैट इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो तेजी से आ रहा था, ऐसे इधर से आ रहा था तेजी से, ऐसे, मतलब ऐसे समझो. ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था. बोलो हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है. पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नाउ यू स्टार्ट अप्लाइंग नेगेटिव चार्ज. नाउ यू आर स्टार्टिंग टू रिपेल इट. नो, now the electron can't come here, and it will stuck here. So still it is trying to move and come back. Okay. I'll increase more and I'll get यहाँ पे. I'm getting the current. वहां पे देखना. Now it has touch here. So now अब ये जो नेगेटिव है, just more. Yeah. Now the electrons can't come. here. क्योंकि ये इतना रिपेल कर रहा है कि ये इधर चाह के भी नहीं आ पा रहा है. It is repelling so much that the negative charge is not able to come here. Yes,
and that amount of potential is known as stopping potential, that is equals to the kinetic energy. And after this you won't get the current because it is not striking here. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएगा नहीं, करंट कहां से आएगा? तो you are not getting any करंट। तो इसके बाद जो ग्राफ रहता है, इसके बाद जो ग्राफ रहता है वो ऐसा तो ये तो यहाँ से ऐसे मिल रहा था, धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज होना शुरू हुआ और यहाँ तो जीरो ही रहता। तो पॉइंट जहां पे ये ऐसे मिलता है, दिस इज कॉल्ड स्टॉप। क्लैरिटी है? बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे करंट आपको जीरो हो जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बाकी मैं अभी थ्योरी पूरी बताऊंगा, मैं तो अभी ये दिखा रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। हाँ है ना बोलो, हाँ है ना बोलो। मैं तो अभी ये दिखा रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। यस यस, प्लीज ये भी ग्राफ बना लीजिए, प्लीज ये भी ग्राफ बना लीजिए। हाँ है ना, ये भी ग्राफ बना लीजिए प्लीज, मेक दीज ग्राफ्स। सो दीज आर ऑब्जर्वेशन, दीज आर ऑब्जर्वेशन। मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये समरी थी। यस, किसकी बात कर रहा हूं? देखो, करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मिल गया। करंट अपीयर्स विद नो डिले। ऐसा लगा ना जैसे ही उस पे लगा करंट मिल गया, जैसे ही लगा करंट मिल गया, नो डिले। Electrons only emitted if frequency of light exceeds the threshold. I've shown you. Maximum energy that electrons come off with increase linearly with frequency. ये भी बता दिया। Threshold frequency depends on type of metal. That also I'll show you. That also I'll show you. Yes, yes, चलेगा। चलो, so let's apply. Let's go to. हाँ राकेश बोलिए, बोलिए बोलिए। जी सर। सर जो 8 नंबर पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक्सीड्स थ्रेशोल्ड। हाँ बिल्कुल। ये और एक बार बताएं। ये देखो ना, ये दो ग्राफ थे ना। जी सर। अगर ये इसके बराबर या थ्रेशोल्ड के है तभी ये करंट मिल रहा था, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। हाँ है ना? जी सर। जब ये लेस है तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, इजेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ है ना? जी सर। जी सर। ठीक, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब इसको एक्सीड किया है। हाँ है ना? जी सर। समझ गए? यस सर। हाँ जी। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? किसी और का डाउट है? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल। हो गया। चलिए लास्ट चीज, लास्ट पॉइंट। लेट्स से एट 510 you were getting electrons ejected. Yes, at 510 you were getting ejected electron. Yes, but the metal was sodium. But this is for sodium. Let's change the metal. I've done zinc. What has happened for the zinc? Zinc नहीं निकल रहा है। For zinc it is not showing. अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा? Still अभी तक नहीं निकला है, अभी तक नहीं निकला है, अभी तक नहीं निकला है, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। नो नो नो, अब निकला जाके अराउंड 220 नैनोमीटर पे, अब जाके इलेक्ट्रॉन निकला। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट, दैट इज आल्सो ऑब्जर्वेशन। यस और नो? यस और नो? तो दिस पॉइंट इज वैलिड। यस यस यस। इतनी बात समझ में आई? अरे इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई? अरे इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई? चलो नेक्स्ट देखिए। हाँ राकेश बोलिए। जी सर, जो आप पहले जो दिखाया, आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी उसका साथ साइमल्टेनियसली भी इंक्रीज करता है। ये कहाँ दिखाया मैंने? जो पहले का जो फिगर में। कहाँ दिखाया मैंने? मुझे दिखाइएगा जरा, कहाँ है? नहीं सर, जो आपका जो फिगर दिखाया, मतलब जो पीपीटी में। हाँ यही तो है वो। नहीं नहीं सर, जो डायग्राम में, जो पीपीटी में, जो यूट्यूब का स्लाइड। यहाँ? ये जी सर, उसका उसका पहले का। मुझे तो नहीं दिखाया सर। आप हाँ। पहले जो दिखाया, अब इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता है, उसका बाद इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, उसका बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ये वाला? जी सर। यहाँ उसका पे फ्रीक्वेंसी कहाँ है? मुझे नहीं दिखाओ। सर, यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं, जो आप पहले शो किया ना। तो जो पहले शो किया वो तो ये किया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी किया, ये वाला। सर। यहाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज किया था, ये वाला ना। जी सर। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या चेंज हो रहा है? ये वाला ग्राफ, ये वाला क्या चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ इंटेंसिटी है? नहीं है। ठीक है, वो जी आपको सर। गलत फहमी हो गई होगी। ठीक है, ठीक है सर। कोई दिक्कत? तो नहीं सर। इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है ना? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? आई शैल नो व्हाट शुड आई डू। इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी ये क्यों इतना वो था, ऐसा क्या था इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये कैसे एक पार्टिकल नेचर को बताता है, मतलब कैसे ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंट से नहीं बता सकते, मतलब व्हाई क्लासिकल वेव प्रेडिक्शंस कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस। ओके, सो these are the basically in white it is classical wave predictions, and in yellow the experimental observation which is opposite to or
related, whether they match it or not. So according to classical wave theory, increasing intensity increases the current. Why should it happen? So try to understand. In wave mechanics, कौन सी mechanics में? Wave mechanics. Energy of wave is directly proportional to amplitude. Intensity of wave is directly proportional to amplitude square. So as amplitude increases, both energy and intensity of wave, both energy and intensity of wave increase. ये कैसी बात है? हाँ ना, ध्यान से समझिएगा इस चीज. So you have a normal high tide and a tsunami. You have a normal high tide and a tsunami. सही बात है. वो ज्वार भाटा बोलते हैं ना, ज्वार भाटा. तो ऐसे एक नॉर्मली जब आप ऐसे रहते तो समुद्र की जो लहरें हैं पहले इधर की तरफ आती, तो नॉर्मल आती, और एक आ रही होती सुनामी. सुनामी बड़ी बड़ी लहरें, वेरी लार्ज वेव. किससे ज्यादा नुकसान होता है, नॉर्मल हाई टाइड से कि सुनामी से? विच कॉजेज मोर हार्म, नॉर्मल हाई टाइड और सुनामी? प्लीज टेल मी, बताइए बताइए. सुनामी. सुनामी क्यों? क्योंकि सुनामी का जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत बड़ा होता है, एंड नॉर्मल हाई टाइड इज लाइक दिस. यस, it will carry more water. It will carry more water, and when it will strike, it will have more energy. So that's why when the tsunami comes, पूरे गांव के गांव बह जाते हैं. Whole villages, like whole that coastal area vanishes. Whole coastal area is why? Because tsunami waves are so big. Tsunami waves are so big that it contains a lot of water, and lot of water means it has a very large energy. Yes. तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे वेव नेचर में एनर्जी भी बढ़ती है और इंटेंसिटी भी बढ़ती है. क्लैरिटी है कि नहीं? क्लैरिटी अकॉर्डिंग टू वेव नेचर. यस, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर. यस. So that's what it says. Increasing intensity should increase current. Increasing intensity should increase current. Why? Because when you will increase the intensity, you will increase the amplitude. According to classical wave prediction. So the light will come, you are carrying more light. When you are carrying more light, according to this, तो एनर्जी ऐसे टकरा टकरा के धीरे धीरे ट्रांसफर होगी, और ज्यादा, मतलब क्योंकि ज्यादा लाइट लेकर आ रहे हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट पैदा हो. तो ये दोनों बात तो मैच कर गई. बिल्कुल सच्चाई है. जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई हमारा करंट बढ़ा था. ये तो हमने ग्राफ खुद भी देखा. ये देखिए, व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज, करंट इज इंक्रीज. दैट इज ट्रू. करंट वर्सेस वोल्टेज, स्टेप एट जीरो देन फ्लैट. इसमें वोल्टेज का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए था. या तो जीरो या फ्लैट, या जीरो या फ्लैट. फ्लैट पार्ट मैचेस. कह रहा है कि फ्लैट पार्ट तो मैच कर रहा है, मतलब वो ये कह रहा था कि पहले जीरो फिर फ्लैट, या तो जीरो या फ्लैट. मतलब उसका जो ये कर रहा था, ये सोच रहा था कि ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे ऐसा ग्राफ आ, वो करंट वर्सेस वोल्टेज, ये ऐसा ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहा था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी. क्योंकि उसको कुछ लेना नहीं था. या तो जीरो होगा, या जैसे ही थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी वो चले जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन. हाँ है ना? बट फ्लैट पार्ट तो आता है. बट एक्सपेरिमेंट हैज अ टेल ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स. एनर्जी ऑफ डिपेंड्स ऑन कलर. ये देखेंगे. कलर ऑफ लाइट यानी फ्रीक्वेंसी डज नॉट मैटर, ओनली इंटेंसिटी मैटर. वेव नेचर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई. फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं है अकॉर्डिंग टू वेव नेचर. अकॉर्डिंग टू वेव नेचर फ्रीक्वेंसी हैज नथिंग टू डू विद एनर्जी. आप लोग तो आज तक E इज इक्वल्स टू एच न्यू मानते थे. ये तो वेव नेचर है, तो पार्टिकल नेचर ना बच्चा. E is equals to h nu is a particle nature. Yes or no? E is equals to h nu is a particle nature. तो वो बात तो प्लैंक ने बोली थी. Before this, energy had no relation with the frequency. Before Planck's theory or in wave mechanics, energy has no relation with the frequency. Energy has a relation with the amplitude. Okay, so frequency should not, according to this, color changes with frequency, right? Color of light or frequency does not matter. Only intensity matter. Experiment में क्या हुआ? Show strong dependence on color या frequency. That's what we have seen. Takes time to heat up, current low and increases with time. ये क्या मानता था? वेव ऐसे चलती जाएगी और जैसे जैसे आती जाएगी टकराती जाएगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर करती जाएगी, ऐसे ऐसे टकरा के एनर्जी ट्रांसफर करती जाएगी. एनर्जी जब पूरी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. So the wave will strike, it will come slowly and strike here, and it will what it will do? It will slowly transfer the energy and the electron will eject out after some time. So there should be a delay, but that did not happen. Electrons come out immediately, no time delay to heat up. Okay, there is no time delay which is observed in normal experiment. Yes, understood? तो ये हमारे क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से जो था, उसके बदले में हमें एक्सपेरिमेंट में क्या मिला था, ये बात हुई. यस. नाउ
ना। तो अभी तक हमें क्या पता है और जो हम यूज करने हैं, तो इसका कहने का मतलब है इफ लाइट कैन किक आउट इलेक्ट्रॉन्स देन इवन स्मॉलेस्ट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट will continue to kick out electron. Energy of electron does not depend on intensity. Kinetic energy of electron does not depend on intensity. At lower frequency, initial kinetic energy decreases. Kinetic energy changes with frequency linearly. ये तो हमने पढ़ ही लिया है. Is minimum frequency below which light won't kick out? Yes. यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, ये सब हमें पता लगा. तो आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया. आइंस्टीन ने बोला देखो बहुत सिंपल है, ये जो है यहाँ पे आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मानना पड़ेगा. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मानना पड़ेगा. यस, वो क्या मान के चलता है, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन. यस, इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड हियर और यहां से हमारी लाइट पड़ रही है जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच. ये इंसिडेंट लाइट है. कौन सी लाइट है? इंसिडेंट लाइट. हाँ है ना. कौन सी लाइट है? इंसिडेंट लाइट. और यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन है ना. और उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. यस, तो ये बोलता है, ऐसे बहुत ही सिंपल है. मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे हिलाने के लिए 10 जूल चाहिए. यू नीड 10 जूल टू मूव मी. यस, एंड इफ यू हैव 9 जूल्स आई वोंट मूव. वेरी सिंपल. If you apply a force of 9 joule, I won't move because I require at least 10 joule because it is a particle nature, because I have attraction with the earth. Okay. So now, if you apply 11 joule to me, what will happen? 10 joules will be used to break the attraction. 10 joules will be used to break the attraction, my attraction with the earth. Basically that friction. And 1 joule will be utilized to push me. 1 जूल यूज होगा कि कितनी तेजी से आगे बढ़ा दिया मैंने. हाँ या ना. अगर मैंने वहीं पे 20 जूल लगा दिया, धक्का दे रहा हूं, वो पता नहीं कितनी दूर पहुंच जाएगा. 50 जूल लगा दिया तो पता ही नहीं कहां पहुंच गए. हाँ या ना बोलो. हाँ या ना बोलो. तो धक्का लगाना है नाउ बिकॉज इट इज अ पार्टिकल नेचर. अब जो मिनिमम आपको देना पड़े उसे बोला गया वर्क फंक्शन. क्या बोला गया? वर्क फंक्शन. हाँ है ना. और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा आप दे तो वो यूज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ या ना. हाँ है ना बोलो. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हाँ है ना. ई इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू ई फाइनल. हाँ है ना बोलिए. ई इनिशियल किसके बराबर था? ई इंसिडेंट. और ई फाइनल किसके बराबर है? ई फाइनल इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन. क्या? वर्क फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ है ना बोलिए. अरे बोलो हाँ है ना. चलेगा कि नहीं चलेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्लीज टेल. चलेगा कि नहीं चलेगा? जल्दी बताओ. इतना चलेगा कि नहीं चलेगा? सो इसी को उसने रिप्रेजेंट कर दिया एच न्यू इंसिडेंट लाइट, एच न्यू नॉट ये इंसिडेंट लाइट का, एच न्यू नॉट इंसिडेंट लाइट. दिस इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ है ना. यस, चलेगा. हाँ है ना बोलिए. तो काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिख सकते? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. यस, क्लियर है. या फिर ऐसे लिख दो माइनस एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू. तो बच्चों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है. कौन सी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ग्राफ का आपको पता है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ग्राफ प्लॉट होता है. ग्राफ जो प्लॉट होता है बच्चों, वो होता है वाई वर्सेस एक्स. ऐसे लिखा जाता है. ग्राफ जो लिखा जाता है वो वाई वर्सेस एक्स लिखा जाता है. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स. हाँ ना बोलिए. इतनी बात तो हाँ है ना. तो अगर मैं इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस, सही बात है. इंटरसेप्ट तो यहाँ पे भी y की पावर 1 होती है और x की भी पावर 1 होती है, तब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे. m और c कांस्टेंट है. m को बोलते हैं स्लोप. m को क्या बोलते हैं? स्लोप. और c को क्या बोलते हैं वो हम अभी देख. ठीक है, देखिएगा. तो जल्दी बताइएगा मुझे, प्लीज टेल मी एट y एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एट y एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एट y एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ. प्लीज टेल. y एक्सिस के लिए जब आपका पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, x की वैल्यू क्या होती है? प्लीज टेल. 0 होगा. 0 होगा. तो इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस का मतलब होता है x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. हाँ ना बोलिए. क्लियर है. तो y की वैल्यू क्या रह जाती है? m इंटू 0 प्लस c. तो y क्या रह जाता है? तो इसीलिए c को लोग आसानी के लिए इंटरसेप्ट भी बोल देते, पर असल में वो जो होता है ये होता है इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस. कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस. ऐसे ही अगर मुझे चेक करना हो इंटरसेप्ट एट एक्स. अंशिका बताइए y की वैल्यू क्या रखूं? अंशिका y की वैल्यू क्या रखूंगा? प्लीज टेल. अंशिका तो नहीं है. ओके. विनीता प्लीज टेल मी
y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू क्या रहेगी अगर मैं इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पे y वैल्यू क्या रहती है, प्लीज टेल मी, यस बताइए। 0 रहेगा। हाँ, y इज इक्वल्स टू जीरो, y इज इक्वल्स टू जीरो, क्लैरिटी है। तो जब y जीरो रहेगा प्लीज पुट इट एम एक्स प्लस सी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस सी बाय, तो ये आपका कहलाता है इंटरसेप्ट एट, क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट एट, सही बात है। अब मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू, ठीक। तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, write the equation kinetic energy equals to h nu minus h nu naught, yes, so this is our y axis because ये पहले लिखा गया, so this is our y axis, this is our x, yes की पावर 1 ही है और यहाँ पे भी 1 है, yes or no, so x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, y is equals to mx plus, बोलो हाँ ना, y is equals to mx plus c, now what will happen, m की वैल्यू जो है that will be equals to h here क्योंकि यहाँ पे है, और c की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एच न्यू नॉट, यस, और माइनस सी बाय एम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लीज टेल मी, माइनस ऑफ सी यानी माइनस ऑफ एच न्यू नॉट, एम यानी डिवाइड बाय एच, दैट विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट, क्लियर है कि नहीं क्लियर, सो दिस विल बी आवर स्लोप, दिस विल बी आवर स्लोप, दिस विल बी आवर वाई इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, एंड दिस विल बी आवर, यस और नो, चलेगा कि नहीं चलेगा, नो आई विल प्लॉट, मैं अब इसको प्लॉट कर, यस, तो हियर इट इज काइनेटिक एनर्जी, हियर इट इज न्यू, यस, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट सी की वैल्यू क्या है माइनस एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, राइट, ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा, हाँ है ना, बोलिए, और यहाँ पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दिस इज आवर एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यस और नो, यस और नो, एंड दिस शोज द अट्रैक्शन, ये क्या शो करता है, यस, is it clear or not, is it clear or not, please tell me, is it clear or not, and slope is equals to h, और यहीं से हम h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि h की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्लैरिटी है, yes or no, please tell me, yes or no, yes, अरे सही तो है भाई, ये बात तो समझ में आ रही है सबको, ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज टेल, ये बात तो समझ में आ रही है, यस, हाँ चलेगा, नाउ ध्यान से देखिएगा, there is a concept of stopping potential, there is a concept of stopping potential applied to stop the electron, है ना, so यहाँ पे क्या होगा, work done by the charge is equals to kinetic energy of electron, तो चार्ज वर्क कितना करता है, वर्क इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, है ना, बोले क्यू डेल्टा वी, तो अगर ये वैल्यू मैं वी नॉट लिख रहा हूं तो चार्ज होगा माइनस ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है माइनस ई, पोटेंशियल कितना लगाया उसने माइनस वी नॉट, पोटेंशियल कितना लगाया उसने माइनस वी नॉट, एंड विच वाज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बोलिए, सो दिस इज इक्वल्स टू ईवी नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईवी नॉट किसके बराबर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईवी नॉट किसके बराबर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने किया क्या, मैंने बोला कि सिर्फ उतना पोटेंशियल लगाया कि अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आ ही नहीं पा रहा है, आई हैव अप्लाइड जस्ट इनफ पोटेंशियल दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू कम टू द इज नॉट एबल टू गिव द करंट, यस बेसिकली इट इज नॉट एबल टू टच द प्लेट, यस वो बस प्लेट को टच नहीं कर पा रहा, इतना अप्लाई कर दे कि बस अब रुक गया, तो मतलब आप जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करे जा रहे थे, एक समय जब बिल्कुल निकलना ही बंद हो गया, उसी को मैंने बोल दिया स्टॉप पोटेंशियल, स्टॉपिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस इट हैज स्टॉप्ड द इलेक्ट्रॉन, यस और नो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही, चार्ज इनटू पोटेंशियल, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये कहां से है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं इतना थोड़ा सा आपको है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज वर्क, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज वर्क, तो आपने रोकने के लिए काम किया ना एक्स्ट्रा, आपने रोकने के लिए काम किया, हाँ या ना, तो काम जो किया दैट इज शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कितना काम किया, रोका तो उसको ऐसे है ना, पूरी जान लगा के ऐसे इस तरफ जान लगा के रोकने का मतलब भाई उसके अंदर अगर एकदम बिल्कुल अब रोक के रखा हुआ है, अब बिल्कुल ऐसे रोक के रखा हुआ है, इसका मतलब यही तो है कि भाई उसकी जितनी उधर फोर्स लगा रहा है मैं इधर से इतनी फोर्स लगा रहा हूँ, हाँ या ना, यस और नो, तो नाउ अब एच न्यू को आप क्या लिख सकते, एच न्यू नॉट माइनस काइनेटिक एनर्जी मतलब सॉरी एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट, यस प्लस ईवी नॉट, यस, अब मैं मतलब हमने जो अभी ग्राफ बनाया था, हमने बनाया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही बताया था,
अब मैं काइनेटिक एनर्जी को पुट कर देता हूँ ईवी नॉट, काइनेटिक एनर्जी को क्या पुट कर देता हूँ ईवी नॉट, तो ये क्या आ जाता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी एच बाय ई न्यू माइनस एच बाय एच न्यू नॉट बाय ई। यस, अब आप वी नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ प्लॉट करो, क्योंकि ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली प्लॉट किया था, दिस वी हैव डन एक्सपेरिमेंटली। यस, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को पता करने का तरीका ही यही होता है हमारे पास, दिस इज द ओनली वे बाय व्हिच वी फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट हैपेंस इज वी नॉट इक्वल्स टू दिस, नाउ व्हाट हैपेंस इज ऐसे करके अब आप वी नॉट वर्सेस न्यू का ग्राफ, सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स, सो स्लोप इज यानी m h upon e, slope is h upon e and x intercept y intercept is minus h upon e, x intercept sorry nu naught again nu naught, yes minus c by m से by minus c by m, ये c की वैल्यू हो गई, मतलब y इंटरसेप्ट तो c हो जाता है एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस c by m, कैलकुलेट करके देख लेना यही आएगा, और ये ग्राफ आप प्लॉट कर, पोटेंशियल तो हम अप्लाई करते ही करते हैं। यस, क्लियर है कि नहीं क्लियर? और गजब बात बताऊं, तो यहां से उसने h की वैल्यू कैलकुलेट की, बिकॉज वी नो e, हमें e की वैल्यू पता है, हमें किसकी वैल्यू पता होती है e की वैल्यू पता होती है, तो यहां से जब मैंने h की वैल्यू कैलकुलेट करी ना एक्सपेरिमेंट से, बाय मतलब भाई मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट, यस वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट, यस वी ऑलरेडी डिड दिस एक्सपेरिमेंट, यहां से देखो ऐसे निकल रहा है ना, तो ये जब एक्सपेरिमेंट से व्हेन आई फाइंड द स्लोप, व्हेन आई फाइंड द स्लोप and when I equated it with h upon e, I got the h equals to 6.6 into 10 raised to power minus 34, which was equals to the प्लैंक्स कांस्टेंट, यस और नो? तो यहां से भी हमने कंफर्म किया था कि प्लैंक्स कांस्टेंट एक गजब चीज है, प्लैंक्स कांस्टेंट एक गजब चीज है जो हमें मिली है, जो हमारी दुनिया बदलने वाली है। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? बोलो बच्चा, अरे सही है कि नहीं सही है बताओ, अरे सही है कि नहीं सही है, बोलो हाँ या ना। अरे ठीक नहीं लग रहा, अच्छा चाहे कि मैं आता हूँ, देख बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए, हाँ ना बोलिए। बच्चों देखो मैं आपको सटीक क्वांटम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत लग भी सकता है कि ये ऐसा है ये ऐसा है, पर जब तक आप सही से नहीं सीखा आप रोएंगे और रोज रोएंगे, रोज रोएंगे, मैं बता, हाँ ना? ये बात समझ में आ गई? चलो अब एक कन्वर्जन की बात करते हैं, ये जो मैं कन्वर्जन आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देगा, देख लीजिएगा जरा, E अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी आपको कितने में डालनी है, यानी एनर्जी आपको कितने में डालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट लैम्डा अपॉन नैनोमीटर, अपॉन का मतलब होता है कि लैम्डा की यूनिट्स क्या रहनी चाहिए, नैनोमीटर रहनी चाहिए, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 12 वॉट, इसको याद कर, चलेगा? हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए, यस फॉर एग्जाम्पल, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर करिए, आंसर आंसर करिए, यस देखिए वेरी गुड, पुट करेंगे एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 620 नैनोमीटर एंड डिवाइडेड बाय नैनोमीटर, इट इज इक्वल्स टू 12 वॉट, दैट्स ऑल वी नो, दैट्स ऑल वी नो। तो ये नैनोमीटर इसीलिए रखा गया है यूनिट में कि ये एक नंबर बन जाए, ये एक क्या बन जाए, नंबर। यस, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज E अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equals to 1240 divided by which is 2 and energy is equals to 2। क्लैरिटी है? तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, that's what I was trying to say, if you put the energy in electron volt you'll get the answer lambda in nanometer, if you put the lambda in nanometer you'll get the energy in electron volt, that's what I was trying to say। yes, हाँ या ना? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। नाउ so it is very simple for electron to be ejected from metal, for electron to be ejected from metal, for electron to be ejected from metal, nu should be greater than equals to nu naught, number one. Number two, energy should be greater than energy naught, energy should be greater than phi, yes, work function. Third, wave number should be greater than wave number naught, but lambda should be less than, yes or no? क्योंकि E is equals to hc upon lambda, yes, nu is equals to c upon lambda, wave number equals to 1 upon lambda, yes or no? Clear? Clear है? Yes, please tell me, हो गया? बड़ी अच्छी चीज है। yes, next, ये मैंने आपको कुछ दे रखा है, ये लेट से, ये तो इसने ऐसे कर दिया, मैं ये छोड़ रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, नंबर ऑफ मेटल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी आर डैश, प्लीज 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 प्लीज, बोलिए। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, पहले इसका क्या निकाल लो, ई इंसिडेंट, ई इंसिडेंट कितना निकलेगा, ई इंसिडेंट कितना निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, कितना है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय
310 4 इलेक्ट्रॉन, ई इंसिडेंट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिसका भी वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, जिसका भी वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, वहां सबसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल जाएगी। जिसका भी वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो जिसका भी वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, वहां से एनर्जी वहां से वो निकल जाएगा। ये 4 नहीं निकलेगा, 4.08 नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहां से भी नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से नहीं। क्लैरिटी, हाउ मेनी टिक? 1 2 3 4 5, आंसर इज 6। वेरी गुड विनीता, वेरी गुड विनीता। यस, क्लियर और नॉट? आंसर इज 6, आंसर इज 6, वेरी गुड। क्लैरिटी है। सो 5 लेस देन इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, हाँ है ना? यस यस, क्लियर है कि नहीं? बोलिए हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? यस, अरे ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, गुड क्वेश्चन करिए। हो गया? देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो व्हाट ये क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले आपने ई इंसिडेंट, पहले E1 जो था दैट वाज इक्वल्स टू 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 300, यानी E1 कितना था, E1 कितना था, E1 कितना था? तो अगर आप यहां से निकाल लो 12.4 यानी 4.13 इलेक्ट्रॉन। यस, सो यू नो E1 इक्वल्स टू 5 प्लस, और जो यहां पे एनर्जी निकली काइनेटिक एनर्जी 300। यस और नो? है ना? बोलिए। सो काइनेटिक एनर्जी 300 वाज इक्वल्स टू 5, सॉरी E1 माइनस 5, और E1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? E1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। यस और नो? क्लैरिटी है? नंबर 1। नाउ E2 इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो जो गलती होती है वो ध्यान से देखना, इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन, अपॉन 150, क्योंकि आपने लैम्डा कितना लिया यहाँ पे? 150, यहाँ पे लैम्डा कितना लिया? 300 नैनो। यस, सो इट विल बी 8.26 electron E2. Yes, and now so calculate the value of phi here. ये था E1 की वैल्यू थी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, phi प्लस काइनेटिक एनर्जी 300। सो यू से phi की क्या वैल्यू हो गई है? 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी 300। सो सिंपल, हाँ है ना? नंबर 1। यस, E2 को आपने ये पुट कर दिया। नाउ E2 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू phi plus kinetic energy at 150. Yes or no? तो kinetic energy at 150 will be equals to E2. E2 is 8.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5, और 5 की वैल्यू क्या है? यहां से पुट कर रखी है। 5 की वैल्यू क्या है? यहां से पुट कर रखी है। तो 5 विल बी इक्वल्स, पुट फ्रॉम 1, 5 फ्रॉम 1, तो काइनेटिक एनर्जी 150 विल बी इक्वल्स टू 8.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5, यानी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस, हाँ है ना? सो काइनेटिक एनर्जी 150 will be equals to 4.13 electron volt 300. So this was nothing but E1. This was nothing but E1. कितना था ये? E1 था। ये कितना था? E1 था। हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा? क्या ये हाफ काइनेटिक एनर्जी 3 है? क्या ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी इसकी? 4.13 बढ़ी, 4.13 बढ़ी। तो काइनेटिक एनर्जी 150 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 300, इतना पता है हमें, हाँ है ना? बोलिए। तो लेस देन तो है नहीं, मोर देन ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 300। काइनेटिक एनर्जी 300, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी 300 की वैल्यू क्या रही होती? ये देखो यहां से आप निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 300 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी 300 इज इक्वल्स टू, इधर काइनेटिक एनर्जी 300 इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी 300 इज इक्वल्स टू 4.13 इलेक्ट्रॉन माइनस 5। सो दिस इज डेफिनेटली क्या? ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 4.13 इलेक्ट्रॉन, हाँ ना? बोलिए, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ ना? ये 4.13 से कम है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी यहां पे देखिएगा इज इक्वल्स टू 4.13। अब 4.13 किससे ज्यादा है? 300 से ज्यादा है। ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? कहने का मतलब 2 बार से ज्यादा हो गया कि नहीं? 4.13 इलेक्ट्रॉन, देखिए थोड़ा सा ना, मतलब आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, मैं आसानी से समझा देता हूं। अरे हाँ है ना? आप कोई वैल्यू पुट कर लेना, ज्यादा आसान रहे, बट लेट्स से इज लेस देन, मैं ऐसे बोल देता हूँ 4.13 इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 300, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी 300 प्लस, दोनों तरफ जोड़ दीजिए 4.1, दोनों तरफ काइनेटिक एनर्जी जोड़ दीजिए, काइनेटिक एनर्जी 300 प्लस काइनेटिक एनर्जी 300, दोनों जगह जोड़ दिया,
this was nothing but kinetic energy 150, this is greater than 2 of kinetic energy, yes or no बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू पुट कर लेना, ज्यादा आसान हो जाएगा। आप काइनेटिक एनर्जी 300 की ना वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर लेना, आपको सब आंसर मिल जाएगा। क्लैरिटी है? बट मैं तो एक्चुअल फॉर्म में जैसे करवाना होता है तो मुझे तो वही करवाना है, तो वही मैं करवा रहा हूं। हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए, यस। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे ई आएगा, यस। डबल नहीं होता, मोर देन डबल हो जाता, मोर देन डबल हो जाता है। क्यों मोर देन डबल क्यों होता है? पहले मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहे थे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पहले मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन में चला जा रहा था, 4 की काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना, सो सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी कितने की जा रही थी? 4 की जा रही थी। अब आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, वर्क फंक्शन में तो 6 ही लगेगा ना, बाकी 10 का 10 नहीं। बच्चा ऐसे कैसे कर सकते हो? वही तो समझा रहा हूं, वही तो समझा रहा हूं, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ठीक, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो पहले आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाई में लग गया, ये ई था, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, हाँ या ना? अब आपने एनर्जी डबल कर दी, यहाँ पे एनर्जी क्या कर दी आपने? डबल। तो ये तो आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, नाउ यू हैव मेड इट 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर वर्क फंक्शन थोड़ी ना डबल हो जाएगा, वर्क फंक्शन वोंट चेंज। तो वर्क फंक्शन तो कितना रहेगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, हाँ या ना? अब जब आपने 20 इधर कर दिया, तो बाकी आप इधर कितना देने लगोगे? 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप क्या देने लगोगे? 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड विच इज मतलब ये 1 था, ये E1 था, ये E2 कर दिया, विच इज ये जो काइनेटिक एनर्जी 2 होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। अरे हाँ है ना, क्योंकि इसके अंदर तो आपने वर्क फंक्शन के लिए भी जो जितना लग रहा था वो भी तो डबल कर दिया था। हाँ, वर्क फंक्शन रिमेन्स सेम, यस यस यस, क्लियर है? बोलिए हाँ है ना? आप ऐसे समझ लीजिए, E इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी 300, यस। आपने इसे डबल कर दिया, 2E इज इक्वल्स टू 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी 150, दिस वाज 1, दिस वाज 2। नाउ आई subtract first from second, now I subtract first from second, now I subtract first from second, try to understand. 2 minus 1, so this will become E, this will become what is this? 0 plus kinetic energy 150 minus kinetic energy 300, yes, clear? And this E is equals to 5 plus kinetic energy 300, kinetic energy 150 minus kinetic energy 300, yes। Now what will happen? ये इधर चला जाएगा, so kinetic energy 150 will be equals to 5 plus 2 into kinetic energy, so this is my actual answer, and kinetic energy 150 is greater than 2 of kinetic energy, yes, very good question, yes। E को मैंने ये पुट कर दिया फ्रॉम फर्स्ट, yes। चलो ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा। आज के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कॉम्पटन इफेक्ट कल ही करेंगे, ठीक है बच्चों? बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, यस।